کی خدمت کرنے کا سکھلا دیا تو نے اصول، سب کی خدمت کرنے کا سکھلا دیا تو نے اصول، ہے زمانہ اقدامات پر توڑ کے طبقات لایا، سب کو مساوات پر بن کے بڑھتا پیار کی۔ The Transtus of St. Francis of Assisi, October 3rd. Each year, on the evening of October 3rd, the Franciscan family throughout the world pauses to celebrate the solemnity of our Holy Father Francis Transitus, passing over from this life to the next. In his famous Canticle of the Creatures, the saint from Assisi wrote, "Praised be you, my Lord, through our sister bodily death, from whom no one living can escape." That line, written near Francis' own embrace of sister bodily death,
reflects the importance and natural character of death in the life of all creation. Francis was not afraid of what would come at the end of his earthly life, choosing instead to recognize in that experience not an end but a transition from one way of living to another. Brother Thomas of Celano recorded an account of that transition that Transutus St. Francis spent the last few days before his death in praising the Lord and teaching his companions, whom he loved so much, to praise Christ with him. He himself, in as far as he was able, broke out with a song. I cry to the Lord with my voice. To the Lord I make loud supplication. He likewise invited all creatures to praise God, and with the words he had composed earlier, he exhorted them to love God. Even death itself, considered by all to be so terrible and hateful, was exhorted to give praise, while he himself, going joyfully to meet it, invited it to make its abode with him. Welcome, he said, my sister death. When the hour of his death approached, Francis asked that all of the brothers living with him be called to his deathbed, and softening his departure with consoling words, he encouraged them with fatherly affection to love God. He spoke of patience and poverty, and of being faithful to the Holy Roman Church, giving precedence to the Holy Gospel before all else. He then stretched his hands over the brothers in the form of a cross, a symbol that he loved so much, and gave his blessing to all the followers, both present and absent. In the power and in the name of the crucified. Every year, on the third evening of October, Franciscans ritually remember the passing of Francis of Assisi from this life into God, as a reminder to renew our own commitment to follow Christ in the way of the poor man of Assisi. A key part of the celebration is to read and reflect upon the gospel passage that Francis asked his brothers to read aloud. Gathered at his deathbed, the brothers read the gospel passage from the Mass of the Last Supper, Holy Thursday. This reading from the Gospel according to St. John, where Jesus washes the feet of his disciples, provided a glimpse into the gospel life that the little poor man from Assisi sought to live
and which we, his spiritual heirs, have inherited. At the heart of the reading stands the example of so-called servant leadership modeled by Jesus Christ himself. میں اپنے گارڈین بردر جاوید جان اور دارالنعیم کی فرانسسکن برادری کی طرف سے آپ سب کو اس روحانی اکٹ میں آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت اور روحانی فیض کا باعث ہے۔ میں آپ سب کو آج کی اس بابرکت شام میں خصوصی طور پر اپنے تقدس ماب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شو اور تمام سپیریئرز، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات اور دیگر معزز مومنین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کی عید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس روحانی پروار روحانی عبادت کے بعد تقدس ماب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شو اقدس قربانی گزرانیں گے۔ بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ۔ عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم اپنے ولی فرانسس کے اس جہاں کو کوچ کرنے کی عید مناتے ہیں۔ ٹرانسٹس بہن موت کی عید، جب مقدس فرانسس آف اسیسی اپنے بھائیوں کو بلا کر تنقید کرتے ہیں کہ وہ خوشی اور غموں میں، دکھ اور سکھ میں ہمیشہ خدا کی تعریف اور تمجید کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آج اس کے بہن موت کی عید مناتے ہیں تو خوشی کے ساتھ اس واقعہ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ موت ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ زندگی ہے،
اور اسی واسطے زندگی پر ایمان رکھتے ہوئے آج ہم بھی مقدس فرانسس کی ہمیشہ کی زندگی کی خوشیاں منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آج کی اس عبادت میں جو بہن موت کی عید کی یاد میں خدا کے سامنے گزارتے ہیں کہ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے مسیحا کی باتوں پر عمل کر پائیں اور خدمت کرتے رہیں۔ آئیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی مانگیں تاکہ واجب طور پر اس پاک ماس میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمباری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ رحم کر خدایا، رحم کر خدایا، رحم کر خدایا، رحم کر خدایا، رحم کر مسیحا، رحم کر مسیحا، رحم کر مسیحا، رحم کر مسیحا، رحم کر خدایا، رحم کر خدایا، رحم کر خدایا، رحم کر خدایا۔ تیری عظمت او خدایا عرش پر، تیری عظمت او خدایا عرش پر، اور سلامت ایک دل ہو عرش پر، اور سلامت ایک دل ہو عرش پر، تیری عظمت او خدایا۔ تو جہانوں کا ہے تو رب جلا، اور یکتا ہے تیرا حسن و جمال، تو جہانوں کا ہے تو رب جلا، اور یکتا ہے تیرا حسن و جمال، نام تیرا پاک مانے ہر بشر، نام تیرا پاک مانے ہر بشر، اور سلامت ایک دل ہو فرش پر، اور سلامت ایک دل ہو فرش پر، تیری عظمت او خدایا۔ زندگی مل
دعا کریں۔ اے مہربان خدا، تیری ہی عنایت سے مقدس فرانسس حلیم اور فروتن بن کر مسیح خداوند کی ایک زندہ تصویر بنا۔ بخش دے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل کر تیرے پیارے بیٹے کے پیچھے چلتے رہیں، نیز محبت اور مسرت کے ساتھ تجھ سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ دعا کرتے ہیں آج ساری جماعت کے لیے، اے خداوند ہم سب کو بھی برکت دے تاکہ ہم بھی مقدس فرانسس جیسی خوبیاں اپنا کر ہر ایک عزت کرنے والے، ہر ایک کا احترام کرنے والے بنیں، تاکہ یوں تیری بادشاہت کو پھیلانے اور مضبوط کرنے میں ہم اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پہلا یوحنا اس کا 4 باب 7 سے 16 آیات تک۔ اے پیارو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا سے ہے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے۔ جس بھی محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا کی محبت اس سے ہم پر ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندگی پائیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اے پیارو، جب کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی تو چاہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور ہماری وہ محبت جو اس سے ہے ہم میں کامل ہو گئی ہے۔ ہم اسی سے جانتے ہیں کہ ہم اس میں رہتے ہیں اور وہ ہم میں، کیونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ ہو۔ جو کوئی اقرار کرے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں اور وہ خدا میں رہتا ہے، اور وہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے ہم نے اسے پہچان لیا ہے اور سچ جان لیا ہے۔ خدا محبت ہے، اور وہ جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے اور خدا اس میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مبارک خدا ہے، دعا ہے میری جان مبارک خدا ہے، یہ صدائی نہ پوے ہر صدا ہے، یہ صدائی نہ پوے ہر صدا ہے، دعا ہے میری جان کدی بھی نہ بھول بخشش دیا نو، کدی بھی نہ بھول بخشش دیا، تو کہ میری جان مبارک خدا ہے، تو کہ میری جان مبارک خدا ہے، دعا ہے میری جان تیرے سارے پاپانو ہو گئے مٹانا، تیرے سارے پاپانو ہو گئے مٹانا، تینوں تاج رحمت دا کرتا ہے، تینوں
आज रहमत का करे अता है दुआ है मेरी यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके 13वें बाब की पहली 13 आयत। ईद फसा से पहले यसू ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रेहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमाउन अस्कर यूदी के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं बाप से निकला और बाप के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यसू ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूं अब तो तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उसे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यसू ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उसे कहा कि ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यसू ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की इस ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में तब्दीली, ट्रांजिटस ऑफ सेंट फ्रांसिस के ईद के मौका पर हमें यहाँ पर सबको बुलाया है ताकि हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर भी गौर कर सकें। जब हम मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और मैं सोचता हूँ उनकी ज़िंदगी का हर एपिसोड, हर वाक़या,
हर वाक़या, हर उनकी जो ज़िंदगी में जो वाक़या हुआ या उन्होंने जो भी एक्टिविटी की, वो आज तक अपनी एक ख़ास हैसियत रखता है या रखती है। मिसाल के तौर पर मुक़द्दस फ्रांसिस अपनी तब्दीली के वक्त जब वो दुआ कर रहे थे सलीब के सामने और बार बार दुआ कर रहे थे, तो आवाज़ आती है, मुक़द्दस फ्रांसिस खुद पूछ रहे थे यीशु से कि ए खुदावंद मैं क्या करूं, तो मुझे बता मैं क्या करूं। हम जितने भी हैं, हम अमूमन जब भी गिरजा जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अपनी चीज़ें खुदा को बताते हैं कि ए खुदा मुझे ये चाहिए, सेहत चाहिए, जो भी चाहिए। We go to God and ask Him to grant us certain things whatever we need. हम पूछते हैं, हम अपनी बातें करते हैं। लेकिन मुक़द्दस फ्रांसिस में ये है कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो कह रहे हैं क्या खुदा तू मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ गिवन ओनली वंस, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिली है। मैं इस ज़िंदगी में वो करूँगा जो तू चाहता है, मेरी मर्ज़ी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जैसे यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में कहा क्या खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। मुक़द्दस फ्रांसिस भी यही चाहते थे, और वो इसलिए कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम सब में भी जब कोई भी शख्स उम्र के किसी भी से, शायद वो नोविस हो, शायद वो जूनियर हो, शायद वो सॉल्वली प्रोफेस्ड हो, और शायद वो 40 साल की उसकी उम्र हो, शायद 60 साल उम्र हो, ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी ये समझ आ जाए कि खुदा मोहब्बत है। और आज की जो पहली तिलावत पढ़ी गई मुक़द्दस यूहन्ना के ख़त से, उसमें भी यही बात है, बड़ी खूबसूरत बात बताई गई है कि उसने अपनी रूह से हमें दिया है, अपनी रूह से हमें दिया है। खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है, और जो खुदा में फिर रहता है वो इंसानों को प्यार करता है, वो इंसानों को प्यार करता है, और वो इंसानों को अनकंडीशनली प्यार करता है, अनकंडीशनल। तो अगर हम इसको देखें कि हम उससे हमें मोहब्बत मिली है, उससे मिली है, और उससे हमें फिर हमारे अंदर भी वही मोहब्बत पैदा हो गई है। इसके बाद भी चॉइस हमारी है। मैं सोच रहा था मिसाल के तौर पर अगर ये नॉरिस वाला गिलास हो, मतलब मीठा गिलास, पानी इसमें मीठा हो, अगर इसमें से थोड़ा सा पानी इसमें डाला जाए तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी मीठा ही हो जाएगा कि नहीं होगा? ये खाली या मीठा होगा। और इसमें से फिर 4-5 और गिलासों में भी डाला जाए, वो भी क्या हो जाए? वो भी मीठा ही होगा, वो मीठा ही होगा। तो जब ये समझ आ जाए कि ये मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और इसमें से हमें भी खुदा ने अपनी रूह में से हमें दिया है, जो आज की तिलावत पढ़ी उसने अपनी रूह से हमें दिया है। तो जब मुक़द्दस फ्रांसिस को ये पता चल गया कि उसने अपनी उस पाक रूह से हमें भी दिया है, अब इसलिए मुझे वो करना है जो वो चाहता है, और उसमें से वो मोहब्बत खुदा, इसलिए मुक़द्दस फ्रांसिस खुद मोहब्बत बन गया, खुद मोहब्बत, पीसफुल पर्सन, और इसलिए उससे फिर मोहब्बत स्टार्टेड फ्लोइंग, लव स्टार्टिंग फ्लोइंग एंड अनकंडीशनल। हमारी जितने भी मैं भी आप सब, हम एक बड़ी स्ट्रगल से गुजरे हैं, सब स्ट्रगल से गुजरे हैं, क्योंकि हम खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं और शौक़ से पढ़ते हैं। खुदा का कलाम खुशखबरी कैसे बनता? खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है। मिसाल के तौर पर ये वाली बात भी कि खुदा ने अपनी रूह से हमें दिया है, या मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि मुबारकबादियों में, या आज की जो तिलावत पढ़ी गई, यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए, या मिसाल के तौर पर यीशु ने कहा एक दूसरे को प्यार करो, ये सब भी सुनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 40 लोग इधर हों, 40 लोग ने यही सुनी बात, 40 लोगों ने यही सुनी कि एक दूसरे को प्यार करो। कुछ लोगों ने एक दूसरे को प्यार करो
तो किसी एक को प्यार किया, दूसरों को नहीं किया, और किसी ने किसी को भी नहीं किया. दिस इज द चॉइस वी मेक. खुदा, अभी खुदा नहीं मैं कुछ भी कह रहा, हम क्यों खुदा के पास बार बार जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, दुआ करते हैं, इवनिंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, कि हम वहाँ से जाकर हदायत लेते हैं, हदायत लेते हैं. खुदा हदायत देता है. इसके बाद चॉइस आपकी है. इट इज़ योर चॉइस टू फॉलो दैट हदायत और नॉट. अदरवाइज दिस रिमेन ऑन नॉलेज लेवल. वो सिर्फ इल्म की हद तक रहेगा, है खुदा का कलाम. लेकिन जिसको ये समझ आ गई कि जीसस इज डायरेक्टिंग मी, गाइडिंग मी टू लव वन अनदर, then it becomes good news for me if I accept that. Otherwise it is just knowledge. इल्म है कि हम इस इल्म को जानते हैं, लेकिन जब ये हमारी समझ में आ जाएगी, फिर खुशखबरी बनेगी, then it will become good news. और फिर ये बात बंदा बदल जाएगा, then there will be change in his life, then he is transformed. First, you, all of us, we are just human being. Then from human being, we understand that we get this love from him, and that love is unconditional. And unconditional love gives me freedom to love everybody, love one another. Everybody, love one another. Then the person is not that human being, person is transformed. वो तब्दील हो गया, उसके अंदर तब्दीली आई है, और जब उसमें तब्दीली आ गई वो आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया कि उसको लिमिटेशंस नहीं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं कि वो इसको प्यार करे और उसको ना करे. देन ही विल हैव नॉट दैट सिलेक्शन, नॉट दैट टाइप ऑफ चॉइस, कंट्रोलिंग चॉइस, बिकॉज देन ही इज़ फ्री. He will do good to everybody. He may not get the things you expect. कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी को छोटी सी टॉफ़ी दी, कैंडी दी, then I also expect कि वो कल मुझे भी देंगे, और उस तब मुझे ना दें, वो किसी और को दे दें. और हो सकता है मैं देखकर परेशान हो, अच्छा कल मैं कैंडी दी थी, आज नहीं मैं भी नहीं शायद. दिस इज माई चॉइस. एंड द अदर चॉइस इज ही गिव्स मी और नॉट, स्टिल आई लव हिम, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज हिज चॉइस और हर चॉइस, नॉट माई चॉइस. आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट पर्सन. ही इज फ्री. दिस इज अनकंडीशनल लव. दैट पर्सन इज फ्री टू रिस्पॉन्ड टू मी, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट. That is unconditional love. Then there is no expectations, but I accept other person the way person is. I accept the way he behaves. My way is different, his or her ways are different. This is unconditional love. And this is what Saint Francis में जब ये बात आ गई, इसके बाद क्या मुक़द्दस फ्रांसिस क्या कहते हैं? When I lived in sin, जब मैं गुनाह में रहता था, गुनाह का मतलब नहीं मुक़द्दस फ्रांसिस गुनाह को करते थे, नहीं. When I lived in sin, जब मुझे पता नहीं था, when I was living in the world, I was living in the world in a worldly way. Living in the world in worldly way, I was living in sin, and then I was transformed. When I understood the word of God, and the word of God became good news for me. तो खुशखबरी उसके लिए जिसने उसको कबूल कर लिया. हाँ, ये बात है, ये बड़ी साफ सुथरी बात, ये बात है. दिस व्हाट आई वाज सीकिंग फॉर, आई वाज लुकिंग फॉर दिस. दिस हैज चेंज माई लाइफ. आई नेवर अंडरस्टूड दिस. नाउ पर्सन इज चेंज्ड. और यही वजह है कि मुक़द्दस फ्रांसिस एक दफ़ा पर वो अपने उनके साथी शागिर्द जो थे वो बैठे थे, तो ये कहीं से रोटी मांग कर लाए थे, क्योंकि मेंडिकेंट्स कहते थे मतलब ये कहीं से भी जब भी खाने का टाइम होगा, घर नहीं है तो इधर उधर से जाकर ये मांग कर ले आते थे. तो इन्होंने मांग के कहीं रोटी ली और चोर आ गए, डाकू आ गए, तो वो इनकी रोटियाँ ले.
मुक़द्दस फ्रांसिस जब आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, बड़े परेशान हो, डंडे डुंडे पकड़े हैं क्या हो? उन्होंने कहा चोर आए तो ले गए, ये एक दो हमने बचा ली हैं। मुक़द्दस फ्रांसिस ने कहा ये भी जाकर उनको दे आओ, ये भी दे आओ। वो शायद पता नहीं हमसे ज़्यादा भूखे होंगे, उनको दे आओ। ये है अनकंडीशनल कि अगर वो चोर भी आके आप उनको भी चीज़ें दें। यू डो नॉट एक्सपेक्ट चोर कि वो हमारे लिए कुछ लाएं, वो अपनी भी चीज़ ले गए। स्टिल यू डन, नो रिटेलिएशन, नो बदला, नथिंग। दैट इज देन यू बिकम गुड न्यूज़, देन द पर्सन बिकम्स गुड न्यूज़। और यही एक बात है कि मुक़द्दस फ्रांसिस, चाहे वो गोबियों को भेड़िए की बात हो, आई मीन मैनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट स्टोरी ऑल्सो, गोबियों को भेड़िया हो या कुछ और। लेकिन आखिरी बात कि अगर हम देखें कि एवरीबॉडी, ईच वन ऑफ अस, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बेसिकली एवरीबॉडी सीक गुड थिंग्स, खुश रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है और वो चीज़ें ढूंढता रहता है जिससे वो खुश रहे, खुश रहे। और मुक़द्दस फ्रांसिस वो जब लावर्ना में जाते हैं वो दुआ करते हैं कि ए यसू, तेरी मोहब्बत का मज़ा ये है कि आप मुझे अपने ज़ख़म दे दें। दिस इज़ व्हाट आई सी, ताकि मैं वो तजर्बा करूँ जो आपने हम गुनाहगारों के लिए किया। यू सैक्रिफाइस्ड योरसेल्फ फॉर अस सिनर्स, दैट इज़ योर अनकंडीशनल लव एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। यू ऑल्सो गिव मी दैट। और ज़ाहिर बात है कि एक होती ख्वाहिश, लेकिन जब ज़ख्म मिल गए तो फिर पता भी होता है कि ये तकलीफ़ देती है, इट्स नॉट ईज़ी। लिखा है उसके बाद ज़ख्मों से खून रिश्ता था, देन ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। फिर शागिर्द उनको उठा कर ले आए और इसके थोड़े अरसा बाद ही फिर सेंट फ्रांसिस की डेथ हो जाती, इस दुनिया से चले जाते। और अभी तक जब मैं स्टडी कर रहा था तो जो डॉक्टर लेवल के जो स्टूडेंट थे साइकोलॉजी में, वो उनका एक टॉपिक था, उन्होंने मुझे भी बुलाया, कह रहे थे कि वी आर स्टडीइंग दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर सीकिंग प्लेजर्स, अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं। लेकिन मुक़द्दस फ्रांसिस में क्या बात थी कि उन्होंने कोई खुशी की चीज़ें मांगने की बजाय उन्होंने यीशु के दुख मांगे, पेन, सफरिंग, वो क्या बात थी। तो अभी भी लोग स्टडी कर रहे हैं कि जितने भी लोग दुनिया में आए हैं वो तो खुशी मांगते हैं, लेकिन मुक़द्दस फ्रांसिस, क्योंकि मुक़द्दस फ्रांसिस को यीशु से मोहब्बत और या यीशु की मोहब्बत इंसानों के लिए का पता चल गया कि यीशु तमाम दुनिया के लोगों को प्यार करते हैं और वो प्यार अनकंडीशनल है, वो हदायत देते हैं, आप माने या ना माने, दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर चॉइस, आपका इंतखाब है, माने ना माने, दिस इज़ योर चॉइस, यू आर फ्री, यू आर फ्री। और उसी फ्रीडम में मुक़द्दस फ्रांसिस ने जब ये समझ लिया, बल्कि मुक़द्दस फ्रांसिस ने ये भी देखा होगा कि जब यीशु मसीह तालीम दे रहे थे, कई लोगों ने कहा कि ये तालीम इज़ वेरी हार्ड, बड़ी सख्त तालीम है, इस पर कौन अमल कर सकता है, तो कई शागिर्द छोड़ के चले गए। तो यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यू आर ऑल्सो फ्री टू गो, इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो माई वेज, यू आर फ्री टू गो। पर देन हम देखते हैं सेंट मुक़द्दस पतरस, वो सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि ऐ खुदावंद, हम कहाँ जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है, जो तेरा कलाम है वो गुड न्यूज़ है, वो हमारे लिए खुशखबरी है। वी कैन नॉट गो नाउ, दैट इज़ द फ्रीडम अगेन, कि आउट ऑफ फ्रीडम वी हैव ऑप्टेड टू फॉलो दैट वे, दैट आउट ऑफ ऑप्शन, देयर वर मैनी ऑप्शंस, other people had also option, that is why they left, they had option to leave, and we knowingly we have opted to remain with you, हमने भी आज़ादी के साथ ये चुन लिया है कि हम मौत तक साथ रहेंगे। मुक़द्दस फ्रांसिस ने ही यही देख लिया कि यीशु मसीह सबको इतना प्यार करते हैं, ना हमारी रिश्तेदारी है ना कोई, लेकिन यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दे दी। और अगर वही प्यार
या थोड़ा सा भी उस प्यार का हिस्सा मुझे भी मिल जाए तो मुझे भी उस रोशनी से वो रोशनी मिल जाएगी। और इसीलिए मुकद्दस फ्रांसिस भी तैयार हो गए। जब आज के ट्रांजिटस का पढ़ा भी गया वाक़या कि मुकद्दस फ्रांसिस अब बिनाई भी ख़त्म हो चुकी थी और कमज़ोर भी हो गए थे, चल फिर भी नहीं सकते थे। और उन्होंने फिर शागिर्दों को कहा कि अब मेरे लिए ज़बूर भी गाए जाएं। शागिर्दों ने ज़बूर गाए। ये वाक़या पढ़ा गया, शागिर्दों के पाँव धोने का वाक़या। और मुकद्दस फ्रांसिस ने इसके बाद शागिर्दों से कहा कि मुझे बिल्कुल बरहनागा कर दिया जाए और मुझे ज़मीन पर लिटा दिया जाए। शागिर्दों ने कहा कि ये तो हमारे लिए मुश्किल है, हाउ कैन वी डू दैट। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ने कहा ताबेदारी के वादे में यू हैव टू डू इट। और मुकद्दस फ्रांसिस ये चाहते थे कि ये जो चीज़ें हैं सारी दुनियावी हैं, वर्ल्डली थिंग्स, आई वॉन्ट टू रियली टच द अर्थ, उस ज़मीन से जहाँ से मैं बनाया गया था, और उधर तो जाना है। जब उधर ही जाना है, सच्चाई इज़ दैट, तो उधर ही मुझे लिटाओ। मैं कुछ साथ ना लेके जाऊंगा, ना मेरे पास है। और उन्होंने फिर मुकद्दस फ्रांसिस को ज़मीन पर लिटा दिया। और लिखा है कि उसके बाद मुकद्दस फ्रांसिस ने ये कहा, कोई भी नहीं, मौत को कोई भी बहन नहीं कहता। मुकद्दस फ्रांसिस ने कहा, क्या है बहन मौत, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू से बाय बाय टू द वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग नाउ लेफ्ट। मैंने ताबेदारी की है, मैंने वफादारी की है, और इसी ताबेदारी में जो मैं कर सकता था मैंने किया है। नाउ आई हैव टू गो। तो ये है ये भी चॉइस कि उन्होंने शागिर्दों को हदायत भी की, और हदायत ये की कि तुमने कैथोलिक चर्च के ताबेदार रहना है जो भी हो, और यस्सु की अंजील के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। दो हदायत में ये भी बताएंगे दो चीज़ें, कि आपने कैथोलिक चर्च के ताबेदार रहना है, और दूसरी कि आपने यस्सु मसीह की अंजील के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। यही तुम्हारे लिए खुशखबरी है, यही खुशखबरी है। तो आज मैं सोचता हूँ कि जब हम आए हैं 3 अक्टूबर को, तो हम भी देख सकते हैं कई दफ़ा हम कई चीज़ों से, अच्छी चीज़ें भी करने में शायद हेजिटेंट हैं, चॉइस नहीं कर पाते। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम आज यही हम भी दुआ करें और खुदा से दुआ मांगे, क्या खुदा मुझे भी आज़ादी दे ताकि मैं हर एक को मिल सकूँ, हर एक को प्यार करूँ, हर एक को प्यार करूँ। हर एक पता नहीं कि हर एक अपनी अपनी चॉइस होगी कि जो वट एवर चॉइस यू हैव। तो आप भी देख सकते हैं कि मैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम शायद देखें कि चलते चलते हो सकता है कि मैं एक को प्यार करूं तो दूसरे से नहीं है, और तीसरे से टूटा टूटा सा रिश्ता है। तो ये चलते चलते, तो ये रास्ते में समझ एक स्पीड ब्रेकर है नफ़रत का। तो अगर नफ़रत के स्पीड ब्रेकर को मैं मोहब्बत में बदल दूं तो मोहब्बत विल एम्पावर, और नफ़रत का जो स्पीड ब्रेकर है ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो टूटा टूटा रिश्ता इधर तक था, दैट विल लेवल्ड। और अगर मैं अपने किसी बहन भाई को जो बीमार था उसको चाय नहीं देना चाह रहा था मिसाल को पहले, और जब ये स्पीड ब्रेकर टूट गया, देन आई कैन गो एंड विजिट हिम और हर, मे बी ऑफर सूप, जिसको पहले मैं सोचता तेन पानी भी नहीं देना, वो चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर द विनर, वी आर द विनर। और शायद ये अक्टूबर का महीना हम सब के लिए बरतों का महीना है कि हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी पर देखें कि कहाँ कहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर्स हैं। और स्पीड ब्रेकर्स हेट्रेड के भी हो सकते हैं, गुस्से के हो सकते हैं, माजी की कई चीज़ें हो सकती हैं। किसी ने मुझे ये कहा, उसने मुझे एक दफ़ा मेरे ख़ानदान के बारे ये कह दिया, और मुझे ये भी याद है ये कहा, तो हम शायद उधर फंसे हुए हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर शायद काफ़ी बड़ा है, उधर क्योंकि फंसे हुए हैं। तो शायद किसी ने तो एक दफ़ा कहा और हमने उसको 12-13 दफ़ा खुद ही कह कर, उसने एक दफ़ा ज़ख्मी किया, हमने उसको 50 दफ़ा कह कर, और 30 साल 12 साल के बाद भी फिर वही कहते रहे। तो हम खुद ही अपने आप को ज़ख्मी करते रहे, और कभी भी करते रहते हैं।
اگر ہم اس کو بائے بائے کہہ دیں اور جو نئی لائف ہے، لائف آف لو، لائف آف ایکسیپٹنس، وہ آ جائے، تو دا بیوٹیفل تھنگ ول بی دین وی ول ناٹ ہیو اینی ایکسپیکٹیشنس بٹ ایکسیپٹنس. جو توقعات ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ مجھے یہ دے، وہ میرے لیے یہ کرے، یا دیکھنا جب میرا برتھ ڈے آئے گا تو یہ میرے لیے یہ لائیں گے، یا یہ ہوگا، یا واٹ ایور، دیز آر آل ایکسپیکٹیشنس. بٹ دین وی لیو دیز ایکسپیکٹیشنس. ہم ایکسیپٹنس پر آ جاتے ہیں کہ آئی ایکسیپٹ دس پرسن، دیٹ پرسن، دا وے پرسن از، اینڈ دس دا وے پرسن از. So I don't have any chip to put in his head and I can change the person the way I want. We can't. This is what we are often trying to do that. تو میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے، مجھے برکت دے، تاکہ ہم مقدس فرانسس کی طرح چیزیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں ان کو ختم کر سکیں اور خود بھی بدل سکیں، دوسروں کو بھی بدلیں، دوسروں کو بدلیں. آج بہت ساری چیزیں یہی ہیں. بھیڑیے کی بات میرے ذہن میں 2-3 دفعہ آئی تھی، لیکن میں صرف آخری بات سوچتا ہوں یہ کیونکہ ذہن میں بار بار آ رہی ہے. تو مقدس فرانسس جب بھیڑیوں کو بھی ملے تو بھیڑیا جو ہے وہ خون خار جانور ہے، دانت بھی اور پنجے بھی، دونوں چیزیں. لیکن مقدس فرانسس نے، لوگ اس سے ڈرتے تھے، لیکن مقدس فرانسس پیسفل کھڑے رہے اور مقدس فرانسس نے اس کو کیا کہا، اے بھائی بھیڑیے، اور بھیڑیا ادھر کھڑا ہو. بھیڑیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص ہولی پرسن، پیسفل پرسن، اس سے کوئی مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں، کیونکہ اب اس کے اندر ٹرانسفارم ہو گئے. اب ہی ہمسیلف واز اے پیسفل پرسن، سو دیر فور دا پیس ور فلوئنگ فرام ہم، اینڈ دا بھیڑیا دین واز ناٹ فیئرفل. تو مقدس فرانسس کے ایک ہی لفظ ہے، دا وے ہی سیڈ، بھیڑیا جو خون خار تھا، جس کے پنجے بھی تیز، دانت بھی تیز، وہ سارا اس کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی، وہ بدل گیا. تو شاید کبھی کبھی ہمارے بھی ایسے ہی پنجے پنجے، زبان تیز، تو جو بھی ہے ہم بھی نقصان دیتے رہتے ہیں. تو وی کین آلسو ٹرانسفارم آور سیلف اینڈ ول بی چینج پرسن. بڑے ہمبل ہوتا ہے. تو اکتوبر کے مہینے میں آئے ہم 2023 میں، ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے کہ ہم دارالنعیم میں آ کر، جس کا مطلب ہی نعمتوں کا گھر ہے، نعیم برکتوں کا گھر ہے، اور ہم یہی عید منا رہے ہیں. خدا سے دعا کریں خدا ہمیں بھی خاص پہلے روشنی عطا کرے، انسائٹ، سو وی may recognize what are the some speed breakers in our life, what are, and how they hinder to grow. And then I can choose to finish them with the power of love, and that is in you, that's in you. تو خدا آپ سب برکت دے، ہم یہ کام اسی طرح جاری رہے اور ہمارے اندر سے پیار اور محبت کی فراوانی جاری رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے. دعائیں، ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا باپ کے حضور پیش کریں. ہم دعا کریں کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ ہم آج مقدس فرانسس کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی کڑوی سے کڑوی چیز، حقیقت، موت جیسی حقیقت کو بھی ہم پیار کے ساتھ اسے بھی بہن کہہ سکیں، اس کو گلے لگا سکیں، اور ہر قسم کے جو اندر کے خوف ہیں ان سے ہم آزاد ہو جائیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں. We pray for our Holy Father, Pope Francis, who has his name after St. Francis of Assisi, that Almighty God help him in promoting the values of Franciscan simplicity in the Church according to the divine will. We pray to the Lord. Let us pray for our Mother Church by the principles of Synod in the spirit of participation, communion and mission. We pray to the Lord. On the occasion of the very feast of our Father St. Francis, we pray in a very special way for all Franciscan families all over the world who are celebrating this feast, that Almighty God give us grace, that like St. Francis of Assisi, we may observe authentically the radical nature of Christ's discipleship while renouncing all that hinders us in following Christ.
We pray to the Lord. We pray for all of us present here, that through this celebration we all may grow in our fraternity, desire to love and to be obedient to God. We pray to the Lord. We pray for all nations and communities, that they may work for peace and mutual understanding, rejecting all mistrust and violence. We pray to the Lord. हम दुआ करें दुनिया में अमन व सलामती के लिए कि हमारी दुआओं के ज़रिए और अपनी ज़ाती कोशिशों के ज़रिए से हर कम्युनिटी में, हर पैरिश में, हर घर में अमन हो और सलामती हो। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं पूरी दुनिया में फ्रांसिस्कन के लिए जो आज की शाम ट्रांजिटस मना रहे हैं। खुदा सबको बड़ी हिकमत, दानाई और रूहानी बसीरत अता करे ताकि हम सब मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं दारुल नईम के लिए ताकि दारुल नईम के दरवाज़े हमेशा इसी तरह सबके लिए खुले रहें और इसी तरह से ही रूहानी इज्तिमा होते रहें और सब मिलकर रूहानियत में बढ़ते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें मेहरबान खुदा बाप तो हमेशा हमारी दुआएं सुनता है, हमारी आज भी दुआएं सुन ताकि इनका असर हम तक पहुंचता रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से। कसरत की बरकत दे यसू, देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। हम बरकत लेने आए, हम बरकत लेने आए, कसरत की बरकत दे यसू, देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यसू। तेरा फरमान अपने माल से ताज़ीम खुदा की करता जा। तेरा फरमान अपने माल से ताज़ीम खुदा की करता जा। हम माल अपने से लाए, हम माल अपने से लाए, बसीरत की बरकत दे यसू, देने वाले हाथों को बसीरत की बरकत दे यसू, देने वाले हाथों को बसीरत की बरकत दे यसू। बरकत मिलती है उनको जो दिल से तुझको देते हैं। बरकत मिलती है उनको जो दिल से तुझको देते हैं। हम बरकत लेने आए हैं, हम बरकत लेने आए हैं, बसीरत की बरकत दे यसू, देने वाले हाथों को बसीरत की बरकत दे यसू,
बरकत लेने आए हैं, कसरत की बरकत दे यीशु, देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यीशु, देने वाले हाथों को कसरत की बरकत दे यीशु, कसरत की बरकत दे यीशु, कसरत की बरकत दे यीशु। अजीज़ो दुआ करें कि अपनी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। आमीन। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी बरकतों नेमतों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर मुक़द्दस फ्रांसिस के लिए, जिसने खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलकर हम सबको यीशु की तरह हलीमी और फ़रोतनी का रास्ता सिखाया और बताया और दिखाया है। और मुक़द्दस फ्रांसिस ने इस दुनिया में रहते हुए बहुत मेहनत की। ए खुदावंद, हमें भी मेहनत करना सिखा। आज हम अपने हाथों की मेहनत के ये नजराने लेकर तेरे हुजूर आए हैं। इन नजरानों के साथ हम सबको कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए क़ुद्दूस बाप के हम हर वक्त तो हर जगह तेरे प्यारे हर वक्त तेरा शुक्र अदा करते रहें। तूने अपने बंदे मुक़द्दस फ्रांसिस को अपने आला रहमो करम से, अपने मुक़द्दसों की खूबियों और नेकियों से आरास्ता किया। तूने रूहुल कुद्दूस की तहरीक से उसके दिल में फरिश्तों जैसे जोश और जज्बा भड़काया। तूने उसके जिस्म पर मसलूब यीशु के ज़ख़म नक्श किए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। लश्करों का खुदा है, कुद्दूस कुद्दूस लश्करों का खुदा है। तो आलम मुशाना से गूंज उठा है, तो आलम मुशाना से गूंज उठा है। कुद्दूस कुद्दूस लश्करों का खुदा है। ज़मीं आसमां तेरी कुदरत का मज़हर, लश्कर फरिश्तों का गाता सदा है। लश्कर फरिश्तों का गाता सदा है। कुद्दूस कुद्दूस लश्करों का खुदा है, कुद्दूस कुद्दूस लश्करों का खुदा है। शाने शया है बुलंद मर्तबा, उसकी शाने शया है। कुद्दूस कुद्दूस लश्करों का खुदा है, कुद्दूस कुद्दूस लश्करों का खुदा है। मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बन।
اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا, روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا. اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو, نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید. اے خداوند تیری موت کا اعلان ہم کرتے ہیں. اے خداوند تیری موت کا اعلان باپ, ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھوٹنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں, بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں. اے خدا, اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ فرانسس, ہمارے بشپ سیباسٹین شو اور اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس سے کامل محبت عطا فرما. ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے تجھ میں ابدی نیند سو گئے ہیں. نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں, ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم, ولی یوسف, مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں. اسی کے ذریعے, اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. عزیزو, آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جس میں ہم خدا سے روز کی روٹی مانگتے ہیں. خدا ہماری دعاؤں کے ذریعے دنیا کے سب لوگوں کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے ہیں, خدا ہر ایک کو روز کی روٹی عطا کرے. جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی, لڑائی جھگڑا ہے, خدا انہیں بھی روٹی دے.
मगर आपके घर में खुदा किसी चीज़ की कमी ना होने दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और हर मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक्त लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो उसकी पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। जिंदगी की रोटी है।
المسیح زندگی کی روٹی ہے، المسیح زندگی کی روٹی ہے۔ یوخرست میں پاکیزہ قربانی، یوخرست میں پاکیزہ قربانی، یادگاری زمین پہ چھوڑی ہے، یادگاری زمین پہ چھوڑی ہے، جو فلک سے زمین پہ اتری ہے، جو فلک سے زمین پہ اتری ہے، المسیح زندگی کی روٹی ہے، المسیح زندگی کی روٹی ہے۔ اس کو کھانے سے پاکیزہ قربانی، یوخرست میں پاکیزہ قربانی، یادگاری زمین پہ چھوڑی ہے، یادگاری زمین پہ چھوڑی ہے، جو فلک سے زمین پہ اتری ہے، جو فلک سے زمین پہ اتری ہے، المسیح زندگی کی روٹی 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 ہے۔ مقدس فرانسس فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے امن اور صلح کا وسیلہ بنا دے۔ ہم دعا کریں۔ مہربان خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس عید کے لیے، اور دعا کرتے اس عید کے موقع پر ہمیں بھی مقدس فرانسس جیسی خوبیاں عطا کر، تاکہ ہم بھی یسوع کو پیار کریں، یسوع کی انجیل مقدس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور انجیل مقدس پر ہی چل کر ہم نئے انسان بن جائیں۔ ہمیں یہ بھی فضل دے کہ مسیح کے پاک بدن اور خون سے قوت پا کر ہم اس دنیا کے آزمائشوں، برائیوں، لالچ، حسد اور بدلے جیسی اور غصے جیسی برائی پر قابو پا کر اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کمیونٹیز کے لیے، اپنے اداروں کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے امن، صلح اور سلامتی کے وسیلے بن جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی حفاظت کرے، خداوند آپ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور آپ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے، اور قادر مطلق خدا آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔